वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने GHMC इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि TRS ही सैलाब मुतासरीन की मदद, बेघर अफराद को घर, आसरा पेंशन, शादी मुबारक स्कीम, तालीमे इनकलाब, बस्ती दवाखाने और दीगर स्कीमात आवाम तक पहुंचा रही और बीजेपी ने सिर्फ GST, नोटबंदी, बेरोजगारी, मजाहिब के नाम पर नफरत और कई मुश्किलात से आवाम को दोचार किया है। TRS ही आवाम की सच्ची हमदर्द जमात है जो आवाम की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है।
ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کلوکنڈلا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک واحد لیڈر ہیں جن کی اگر میں ستائش کروں، کھلے عام مدرسے کا دورہ کیے جامعہ نظامیہ میں، خود نظامیہ کو آئے، نہ صرف نظامیہ کو آئے، بچے اور بچوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا، 3.5 گھنٹے جامعہ نظامیہ میں گزارے، نہ صرف گزارے بلکہ بچوں کے مشکلات کو، تکلیفوں کو سن کر بچوں کی جو اسنادات ہیں، جو ڈگریاں ہیں عالی فاضل کی، اس کو ایکویلنسی کی مماثل قرار دیا، اور نہ صرف مماثل قرار دیا بلکہ وہ بچوں کو ایک آڈیٹوریم کی ضرورت تھی، 17 کروڑ کی لاگت سے اے سی میں لفٹ لگا کر آج پورا آڈیٹوریم جامعہ نظامیہ میں قائم ہوا۔ آپ بتائیے، پہلے کے سابقہ دور حکومت میں صرف اور صرف مدرسوں کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی تھی، لیکن ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کلوکنڈلا چندرشیکھر راؤ صاحب نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، جس کی زندہ جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں آپ کو صاف طور پر، ریاست تلنگانہ کبھی بھی کے سی آر صاحب کی قیادت میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی کام نہیں کیا۔ میں خود وقف بورڈ میں 3.5 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ریاست تلنگانہ میں اتنے مسجدیں آباد کی گئی، میں آپ کو مثال نہیں دوں گا، لسٹ دے کر بتاؤں گا۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں غیر آباد مسجدیں ہم آباد کر رہے ہیں۔ پرسوں امیر پیٹ پہ وائی جنکشن پہ ایک مسجد شہید ہونے والی تھی، اس کو بھی ہم نے رکایا۔ زندگی جاگتی مثال آپ لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں پر چشمدید گواہ ہیں، جاوید بھائی وغیرہ۔ یہاں پر آپ کے سراؤنڈنگ میں قبرستانوں کی جگہ نہیں تھی، قبرستان کو اتنی تکلیفیں ہو رہی تھی، مختے کے لوگ بھی قبرستان کے لیے، آپ کے حلقے کے لوگ پریشان تھے۔ جاوید بھائی کو پوچھئے، 3 گھنٹے کے اندر نہ صرف انہیں لیٹر دلایا ہوں بلکہ آپ کی قبرستانوں کی تدفین بھی کرو، کون روکتا ہے دیکھ لیں گے بول کر یہ جاوید بھائی کو صاف طور پر لیٹر بھی دلایا۔ نہ صرف لیٹر دلایا بلکہ لیٹر دلانے کے بعد یہ لوگ جیسے ہی گئے، 2 دن کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آتا ہے جگہ کے تعلق سے، صرف 1 گھنٹے کے اندر اس کا کاؤنٹر بھی دلایا ہوں اور اس کا جواب بھی دلایا ہوں۔ خیرآباد کی عوام یہ جانتی ہے قبرستان کی جو تکلیف آپ لوگوں کو ہوئی۔ میں آپ کو بتا دوں، اور ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، الزامات تراشی لوگ بہت کرتے ہیں۔ میں آپ کو زندگی جاگتی مثال دیتے ایک چھوٹی بتاتا ہوں۔ آپ مکہ مسجد جائیے، کسی بھی دور حکومت میں مکہ مسجد میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے؟ کے سی آر صاحب کے دور حکومت میں 10 کروڑ کی لاگت سے مکہ مسجد کی تزمین نو کا کام جاری ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہی وقف بورڈ 13 تاریخ، یہ 13 اکتوبر کے دن ہم نے ایک ریزولوشن لیا 75 لاکھ سے باغان کی شاہی مسجد کو ترقی دینے کے لیے، اور نہ صرف ریزولوشن لیا بلکہ بجٹ بھی علیحدہ کر دیا، انجینئرز کو رکھ کر کس طریقے کا رینوویشن کیا جائے۔ انجینئرز بولے 75 لاکھ میں کچھ بھی نہیں ہونا، 1 کروڑ روپے ہونا۔ اب بولے 1 نہیں 1.5 کروڑ کا ریزولوشن پہ ایمرجنسی بورو سے سہنا لے کے منگا کے پھر 1 کروڑ روپے ہم تزمین نو سے کام شاہی مسجد کا جاری ہے۔ آپ بتائیے سابقہ دور حکومت میں کوئی مر جاتا تو تدفین کے کوئی پیسے دیتے؟ ہم وقف بورڈ کی طرف سے 5,000 روپے ایک تدفین کو دے رہے ہیں۔ اور کووڈ کے ایسے نازک دور میں فقیر ملا قبرستان میں صرف کووڈ کا قبرستان بول کر، کیونکہ ہمارے آس پاس کے سراؤنڈنگ کے متولی حضرات کووڈ کے پیشنٹ کو، کووڈ سے جن کی اموات ہوئی ان کو تدفین نہیں دے رہے تھے، لیکن وقف بورڈ نے ایک اسٹیپ لیا فقیر ملا قبرستان میں، جس کو ماڈل قبرستان کا نام دیا گیا، وہاں پر وقف بورڈ کی جانب سے تدفین عمل میں آئی۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں صاف طور پر دیکھیے، آپ کسی سابقہ دور حکومت میں وقف بورڈ سے بھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی عوام کے درمیان میں وقف بورڈ کی طرف سے 20 لاکھ روپے کی لاگت سے عوام میں جو بھی گراسری ہوتی تقسیم کی۔ پرسوں ریلیف کا بھی موقع آیا، وقف بورڈ کی طرف سے تقسیم کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، تلنگانہ ریاستی حکومت کے وزیر اعلیٰ کلوکنڈلا چندرشیکھر راؤ صاحب نے صاف طور پر مسلمانوں کے لیے جو کام انجام دیے۔ آپ جانتے ہیں انیس الغربا کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو بالکل آپ کے قریب میں نامپلی ایریا میں ہے، مگر وہ کوئی حکومت نے وہ بنائی نہیں، نظام دور حکومت سے ہے۔
वहां पर जो एक यतीम खाना मुसलमानों का था वो कसमपुरी की हालत में था, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। वहां का जो भी सियासी कायद चेयरमैन बनता, वहां पर जो दावतों का खाना आता अपने घर लेके चले आता था, बच्चियों को टॉर्चर करता था। लेकिन रियासत तेलंगाना के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने उसको 20 करोड़ रुपए ना सिर्फ सैंक्शन किए, बल्कि उसको लगकर उसके तहत आरएनबी वालों की 4000 गज जमीन से 7 फ्लोर की तामीर हो रही है। आप देखिए 4 फ्लोर गिर चुके हैं, ना सिर्फ बन चुका है। मैं बता दूं, चैलेंज करता हूं कोई भी अपोजिशन लीडर को, आइए इंशाल्लाह, अगर चैलेंज करता हूं उनके दौरे हुकूमत में क्या काम हुए, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के दौरे हुकूमत में काम किए, अगर वाकईतन अगर कोई प्रूफ कर दिखा दे, इंशाल्लाह प्रूफ कर दिखा दे, सियासत से किनारा किसी इख्तियार कर लूंगा, इतनी बात बोल रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, आप देखिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर कभी किसी हुकूमत ने 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल, 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल किसी हुकूमत ने दी है। रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने एक बोल्ड स्टेप लेकर हमारे बच्चे सिर्फ माइनॉरिटीज ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर आज जो हमारे बच्चे अब्रॉड में जाकर जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सब वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की बदौलत है। एक छोटी सी मिसाल बता दूं आपको, आप देखिए, आपने ये महसूस किया होगा, कई मुस्लिम वजीरों को हमने रिप्रेजेंटेशन आती है तो क्या बोलते थे, मुस्लिम वजीरा क्या बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम कंट्री है ये। मैं बोला इमाम मौजन हजरात को हानरियत देना साहब, कोई सुनने वाला नहीं था साबिका दौरे हुकूमत में। लेकिन रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने एक मिसाल कायम की, हमारे इस मॉडल को दूसरे लोग अख्तियार कर रहे हैं। ना सिर्फ 10,000 से ज्यादा इमाम महीना 5,000 रुपए ले रहे हैं। किसी हमारा देख के दिल्ली हुकूमत अडॉप्ट करी, हमारा देख के आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी अडॉप्ट करे, ये हमारी स्कीम आपको दूसरे लोग आजमा रहे हैं। इमाम मौजन को कभी दिया गया 65 सालों में? यहाँ कई लोग मस्जिद की खिदमत गुजार है, बताइए किसी भी हुकूमत में 2,000 रुपए को इमाम को दिया गया क्या, बता लीजिए, 2,000 रुपए। लेकिन आप ये भी देखिए, दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं, शादी मुबारक स्कीम, बताइए ये कारनामा किसी हुकूमत ने किया है? किसी गरीब के घर जाकर दरवाजा खटखटाकर पूछिए 1,01,16 रुपये क्या होते? मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी भाई बहन हैं, मैंने भी अपने घर में तकलीफ को महसूस किया। मुझको भी 8 भाइयां और 2 बहना, 10 लोग हम लोग रहते थे। मेरे एक शिक्षा को 8 बेटियां थे। आप बताइए, मैं आपको मिसाल देकर बता दूं, छोटी सी मिसाल, जब हम किसी रिश्तेदार के पास बच्ची की शादी है बोलकर घर को जाते कुछ कर्जा मांगने के लिए 10,000 रुपए देकर 10 रुबाब की बातें करता था। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने आपको 1,01,16 रुपए अकाउंट में, आपके अकाउंट में आ जा रहे हैं। ये अकाउंट में आ रहे हैं, ना सिर्फ ये मैं बोल रहा हूं किसी लीडर के तहत, किसी लीडर के हाथ को, एजेंट के हाथ को देकर नहीं दिला रहे। आप जावी पे यहाँ पर मौजूद है, एक जीती जाती मिसाल, मैं भी एमआरओ ऑफिस शेखपेटी आता, मेरे को भी जावी पे वगैरह जो आते थे, जो पेंशन दी जाती थी 200 रुपए दी जाती थी, 250 रुपए 200 रुपए दी जाती थी। वो 200 रुपए देने को 10 वक्त एमआरओ ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था। मेरी रियासत के वजीर आला की एक मिसाल आपको देकर बता दूं, मेरी रियासत के वजीर आला की आपको मिसाल देकर बता दूं, देखिए आप अगर हैंडीकैप है 3,000 रुपए कौन दे रहा बोलिए, और जो ज़ईफ हजरात है 2,000 रुपए। उस गरीब से पूछिए जिसको ये पेंशन आ रहा है, उसके दिल से पूछिए केसीआर साहब को क्या दुआएं दे रहे हैं। और मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने मुसलमानों की तरक्की के खातिर, क्योंकि मुसलमान 400 साल इस रियासत पर हुकूमत किए हैदराबाद स्टेट में, इसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी तो मुसलमान पसमानदा हो गए। पसमानदगी की जब रिपोर्ट मंगाई तो सबसे पहली रिपोर्ट क्या आई मालूम है? मुसलमान तालीमी पसमानदगी से दूर है। आप बताइए, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए केसीआर साहब ने एक रिवोल्यूशन, तालीमी एजुकेशनल रिवोल्यूशन लाया। मैं साबिका 65 साल दौर की हुकूमत को आपको आरटीआई की इंफॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ 4 रेसिडेंशियल स्कूल थे, 4 रेसिडेंशियल स्कूल थे। लेकिन रियासत तेलंगाना के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने अक़लियतों के लिए जो 4 स्कूल थे, 204 स्कूल कायम
कायम करके ये बतला दिया कि मैं सच्चा अक़लियतों का दोस्त हूँ और हमदर्द इंसान हूँ। 204 स्कूल अक़लियतों के लिए कायम करना कोई छोटा कारनामा नहीं, जहां पर 1 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे, वो भी मुसलमान अक़लियती बच्चे। 1 लाख, ना सिर्फ उन्हें तालीम नहीं जा रही बल्कि कपड़ा, जूते, ड्रेस, बुक्स, और ना सिर्फ वो बल्कि स्पोर्ट्स के लिए उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पोर्ट्स के किट्स दे रहे, स्पोर्ट्स के ड्रेस दे रहे हैं, मेडिकल का उनका फिटनेस पूरा चेक किया जा रहा है। ये सब मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का कारनामा है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको, क्योंकि एजुकेशनली जो रिवोल्यूशन केसीआर साहब ने लाया है वो कारनामा आने वाले दौर में आपको एक 10-15 साल के बाद ये बहुत बड़ा कारनामा दिखेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको, क्योंकि जावेद भाई का बार बार मेरी तरफ घूरना और आकर बोलना, बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, फिर स्कूटर रियाली भी है, तो ये सब चीजों को महसूस करते हुए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए आया था, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता। सिर्फ एक बात की आपसे गुजारिश करूंगा, एक आपसे वादा लूंगा, इस नाजुक मरहले में, इस नाजुक दौर में किस तरीके का माहौल आ रहा है, किस तरीके की सिचुएशन आ रही है, आपने देखा होगा। बड़े बड़े एक कोई तानिश आ रहा है, कोई बड़े बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक बात की अपील करूंगा, क्योंकि मेरे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बहुत हैं, बहुत ज्यादा बैठे हैं, क्योंकि मैं आपसे एक वादा ये लेकर जाना चाहता हूँ। भाई, जब तक अब तक बहुत अपन मुश्किलात से गुजरे, और एक बात आपको ये भी बता दूं, हमारी सबसे बड़ी नाहिली क्या है, हम हमारे वोट का इस्तेमाल नहीं करते, हम घर के बाहर नहीं निकलते। लेकिन अब ये दौर को जाफरानी परचम को अगर रोकना है, इस दौर में अगर आपको कुछ कर दिखाना है, आइए सेकुलर लोगों के साथ जुड़िए, मजहब की नाम पर वोट देना बंद कीजिए। आपके मजहब के नाम पर वोट देने से क्या हो रहा, वो तो बहुत ज्यादा नुकसान उन गुरबा का हो रहा जो लोग गांव में जिंदगी बसर करें। तो आइए, निकलिए बाहर, निकल कर ऐसे सेकुलर किरदार लोगों को, केसीआर साहब जैसी शख्सियत का चेहरा देखकर मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आपके जो डिवीजन है, क्योंकि मैडम कविता रेड्डी मैडम को मैं भी जानता हूँ कितने सेकुलर है, और कितना हमारे जावेद भाई वगैरह के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, आपकी जहरा नगर की मस्जिद के लिए भी बार बार वोट को आए थे लोग, क्योंकि मैं बेहतर जानता हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वो लोग सेकुलर है। इसीलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, पार्टी के नाम पर, केसीआर साहब के चेहरे के नाम पर भी, केसीआर साहब ने मुसलमानों के ऊपर जो एहसानात किए 65 सालों में किसी हुकूमत ने नहीं की, वो काम 6 साल में मेरे वजीर आला कर दिखाया। मैं आपसे अदबन इस बात की गुजारिश करता हूँ, थोड़ा वक्त निकाल लीजिए, आकर वोट डालीजिए और वोट तार के निशान पर लगाइए, क्योंकि ये आज तो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने वोट की अहमियत को, उसकी कीमत को, उसके मर्तबे को अगर नहीं समझेंगे, तो फिर बोलते एक अशार है अल्लामा इकबाल का, अल्लामा इकबाल एक कहते थे शेर, जो लोग दास्तानी ना होगी, दास्तानों में मेरे को शुरू के लफ्ज याद नहीं आ रहे, क्योंकि मैं भी अशार बहुत ज्यादा कहता हूँ, हमारी दास्तानी मिल जाएगी, इसमें दास्तानी हमारी मिल जाएगी। आप याद रखो, अगर आप निकलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ कर दिखाएंगे। मैं आपसे इतना वादा, भाई टीआरएस को वोट करेंगे ना, टीआरएस को वोट करेंगे नहीं करेंगे, आप उठाकर जवाब दीजिए भाई, क्योंकि एक सेकुलर जमात है, ये मुसलमानों के अंदर ये वादा है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वादा खर्च के बराबर है। अगर आप वादा कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कविता मैडम ना सिर्फ साबिका में जो वोटों से ये जीते थे, अब की बार उससे ज्यादा बम्पर मेजॉरिटी के साथ मुसलमान ये दिखाएंगे साहिबान से जीत कर बनाए। क्या भाई पक्का वादा है? बस एक अशार के साथ रुखसत होता हूँ, क्योंकि जावेद भाई बाजू आकर ठहरे हैं, क्योंकि माइक छीनने पे मजबूर है। सिर्फ एक अशार कहता हूँ, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, जिनसे इस मुआशिरे में उजाला था उन उजालों की याद आती है। क्योंकि ये उजालों का मतलब ये है, हमको भी तैयार होना है, ऐसे उजालों को तैयार करना है कि लोहे से ही मनवाना है, और बोलते हैं पत्थर से पत्थर को ही कटवाना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, कार के निशान पर 1 दिसंबर के दिन वोट लगाइए। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह की फजल करम से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से मुनक्किद की गई ग्रैंड पब्लिक मीटिंग
जनसभा आज अल्लाह के फजल बहुत ज़्यादा कामयाब रही। इंशाअल्लाह आज पूरा हैदराबाद गुलाबी परचम लहरा रहा है। शहर के तमाम कोने कोनों में खाली गुलाबी ही गुलाबी नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह 150 सीटों में से इंशाअल्लाह 110 तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जीतेगी और यहाँ से इंशाअल्लाह तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ही बल्दिया पर परचम रहेगा, क्योंकि केसीआर साहब की क़ियादत को आवाम ने पसंद किया और आज आवाम ने केसीआर साहब को लोग दुआओं से नवाज रहे हैं। जिन्होंने तेलंगाना के जो स्कीमात है और तेलंगाना जो आज अमन का गेवारा है, तेलंगाना जो आज पीसफुल नजर आ रहा है, वो मेरे रियासत के वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की बदौलत है। और मैं तेलंगाना के तमाम अपोजिशन पार्टियां जो आज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के इस पब्लिक की जो गैदरिंग की मीटिंग है, जनसभा है, उसको देखकर सबके पारे उड़ चुके हैं और इंशाअल्लाह तमाम पार्टियों की जमानतें भी जब्त होगी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से ग्रेटर हैदराबाद के इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह 110 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। और मैं आवाम से हाथ जोड़कर जुलूस अपील करता हूँ, आप अपने एक वोट को इस्तेमाल करिए। भारी अक्सरियत के साथ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवारों को 1 दिसंबर के दिन कार के निशान पर वोट लगाकर केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए और डायनामिक IT मिनिस्टर, म्यूनसिपल मिनिस्टर KTR साहब की क़यादत को पसंद कीजिए, क्योंकि पूरे मुल्क में ऐसी नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तेलंगाना में एक रोल मॉडल की तरह एक हुकूमत जो 7 साल से यहाँ पर कर रही है, ऐसी मॉडल हमारे मुल्क पर भी लहराना चाहिए और इंशाअल्लाह गुलाबी परचम यहाँ नहीं बल्कि इस मुल्क पर लहराएगा। और इंशाअल्लाह केसीआर साहब की क़यादत में हम पार्लियामेंट पर भी कब्जा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म आइंदा वज़ीर आज़म केसीआर साहब होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि ऐसी वेलफेयर स्कीमात कहीं नहीं है और केसीआर साहब जैसे हीरो को आज मुल्क की सतह पर ज़रूरत है। और हम दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारी पार्टी के सुप्रीमो को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे और हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह। और आवाम से इस बात को अपील करता हूँ, आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। कार के निशान पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के तमाम उम्मीदवार को कामयाब बनाइए। जय तेलंगाना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कार के निशान को, कार के निशान को, कार के निशान को, कार के निशान को।